اٹھا کر آنے کے لیے معافی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے آئے بنا نا یہ بات صاف نہیں ہو سکتی تھی۔ میں تم جیسے فراڈی سے بات تک نہیں کرنا چاہتا، نکل جاؤ تم دونوں میرے گھر سے۔ ایک بار ان کی بات سن لیجیے مرزا جی۔ بھائی صاحب، آپ ہمیں صرف ایک موقع دے دیں، اس کے بعد آپ ہمیں 100 جوتے بھی ماریں گے نا تو ہم اف تک نہیں کریں گے۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا۔ وہ لڑکے جو مجھے پیسے دیتے تھے وہ ایسے ہی گن کے میں آپ کے گلے میں ڈال دیتا تھا بس۔ اچھا، گلے میں پڑے پیسوں کو تکلیف ہوئی اور خود ہی اٹھ کے چلے گئے ہیں؟ بھائی جی یہ تو اللہ جانتا ہے، یا پھر وہ لڑکے۔ لیکن وہ لڑکے اتنے تیز تھے، کب وہ ہاتھ کی صفائی دکھا دیتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ سونے کی بالیاں ہیں، میری امی کی آخری نشانی ہے۔ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سنبھال کے رکھی تھی کہ جب اس کی شادی ہوگی تو میں اس کو دوں گی۔ آپ کا نقصان بھی تو بھرنا ہے نا ہمیں۔ یہ لاکھ سے اوپر کی ہیں، اور جی یہ سچے سونے کی ہیں، بڑی مضبوط پرانے زمانے کی بنی ہیں۔ دکھاؤ تو۔ ہم چور نہیں ہیں اور نہ فرادی ہے، سادہ سے لوگ ہیں بھائی جی۔ قدیم شہر میں ایک پتھر کا دروازہ تھا جو پورے سال بند رہتا مگر ہر سال صرف ایک دن کے لیے کھلتا تھا۔ 14 سالہ فہد ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک سال اس نے دروازہ کھلنے کے دن صبح سویرے وہاں پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا فہد اندر داخل ہوا۔ وہاں نہ خزانہ تھا نہ محل، ایک وسیع میدان تھا جس میں سینکڑوں خالی تختیاں رکھی تھیں۔ ایک بزرگ نے اسے بتایا، ہر تختی پر ایک ایسے شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس نے پچھلے سال کسی دوسرے انسان کی زندگی آسان بنائی ہو۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، اور یہ تختیاں خالی کیوں ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، کیونکہ ہم اکثر نیکی تو کرتے ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے۔ فہد نے سوچا کہ شاید اس شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ اس نے شہر واپس جا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ پچھلے سال کس نے کسی کی مدد کی تھی۔ کسی نے یتیم بچوں کے لیے کتابیں دی تھیں، کسی نے بیمار پڑوسی کی دیکھ بھال کی تھی، کسی نے مسافروں کے لیے پانی رکھا تھا۔ فہد نے سب کے نام لکھے۔ اگلے سال دروازہ کھلا تو میدان کی بیشتر تختیاں بھر چکی تھیں، لیکن ایک تختی اب بھی خالی تھی۔ بزرگ نے فہد سے کہا، اس پر تمہارا نام ہونا چاہیے۔ فہد نے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے تو صرف دوسروں کی نیکیاں یاد کی ہیں۔ بزرگ مسکرائے، کبھی کبھی کسی کی نیکی کو پہچاننا بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اس دن شہر میں ایک نئی روایت شروع ہوئی۔ لوگ ہر سال خاموشی سے دوسروں کی اچھی کوششوں کو یاد کرتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے۔ سبق: نیکی صرف کرنا ہی نہیں، دوسروں کی نیکی کو پہچاننا اور سراہنا بھی انسانوں کے درمیان محبت بڑھاتا ہے۔ وہ دروازہ جو ہر سال ایک بار کھلتا تھا۔ ایک قدیم شہر میں ایک پتھر کا دروازہ تھا جو پورے سال بند رہتا مگر ہر سال صرف ایک دن کے لیے کھلتا تھا۔ 14 سالہ فہد ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک سال اس نے دروازہ کھلنے کے دن صبح سویرے وہاں پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا فہد اندر داخل ہوا۔ وہاں نہ خزانہ تھا نہ محل، ایک وسیع میدان تھا جس میں سینکڑوں خالی تختیاں رکھی تھیں۔ ایک بزرگ نے اسے بتایا، ہر تختی پر ایک ایسے شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس نے پچھلے سال کسی دوسرے انسان کی زندگی آسان بنائی ہو۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، اور یہ تختیاں خالی کیوں ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، کیونکہ ہم اکثر نیکی تو کرتے ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے۔ فہد نے سوچا کہ شاید اس شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ اس نے شہر واپس جا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ پچھلے سال کس نے کسی کی مدد کی تھی۔ کسی نے یتیم بچوں کے لیے کتابیں دی تھیں، کسی نے بیمار پڑوسی کی دیکھ بھال کی تھی، کسی نے مسافروں کے لیے پانی رکھا تھا۔ فہد نے سب کے نام لکھے۔ اگلے سال دروازہ کھلا تو میدان کی بیشتر تختیاں بھر چکی تھیں، لیکن ایک تختی اب بھی خالی تھی۔ بزرگ نے فہد سے کہا، اس پر تمہارا نام ہونا چاہیے۔ فہد نے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے تو صرف دوسروں کی نیکیاں یاد کی ہیں۔ بزرگ مسکرائے، کبھی کبھی کسی کی نیکی کو پہچاننا بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اس دن شہر میں ایک نئی روایت شروع ہوئی۔ لوگ ہر سال خاموشی سے دوسروں کی اچھی کوششوں کو یاد کرتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے۔ سبق: نیکی صرف کرنا ہی نہیں، دوسروں کی نیکی کو پہچاننا اور سراہنا بھی انسانوں کے درمیان محبت بڑھاتا ہے۔ وہ دروازہ جو ہر سال ایک بار کھلتا تھا۔
एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए,
कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक: नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक: नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक: नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी।
किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया,
ہر تختی پر ایک ایسے شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس نے پچھلے سال کسی دوسرے انسان کی زندگی آسان بنائی ہو۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، اور یہ تختیاں خالی کیوں ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، کیونکہ ہم اکثر نیکی تو کرتے ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے۔ فہد نے سوچا کہ شاید اس شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ اس نے شہر واپس جا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ پچھلے سال کس کس نے کسی کی مدد کی تھی۔ کسی نے یتیم بچوں کے لیے کتابیں دی تھیں، کسی نے بیمار پڑوسی کی دیکھ بھال کی تھی، کسی نے مسافروں کے لیے پانی رکھا تھا۔ فہد نے سب کے نام لکھے۔ اگلے سال دروازہ کھلا تو میدان کی بیشتر تختیاں بھر چکی تھیں، لیکن ایک تختی اب بھی خالی تھی۔ بزرگ نے فہد سے کہا، اس پر تمہارا نام ہونا چاہیے۔ فہد نے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے تو صرف دوسروں کی نیکیاں یاد کی ہیں۔ بزرگ مسکرائے، کبھی کبھی کسی کی نیکی کو پہچاننا بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اس دن شہر میں ایک نئی روایت شروع ہوئی۔ لوگ ہر سال خاموشی سے دوسروں کی اچھی کوششوں کو یاد کرتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے۔ سبق: نیکی صرف کرنا ہی نہیں، دوسروں کی نیکی کو پہچاننا اور سراہنا بھی انسانوں کے درمیان محبت بڑھاتا ہے۔ وہ دروازہ جو ہر سال ایک بار کھلتا تھا۔ ایک قدیم شہر میں ایک پتھر کا دروازہ تھا جو پورے سال بند رہتا مگر ہر سال صرف ایک دن کے لیے کھلتا تھا۔ 14 سالہ فہد ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک سال اس نے دروازہ کھلنے کے دن صبح سویرے وہاں پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، فہد اندر داخل ہوا۔ وہاں نہ خزانہ تھا نہ محل۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں سینکڑوں خالی تختیاں رکھی تھیں۔ ایک بزرگ نے اسے بتایا، ہر تختی پر ایک ایسے شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس نے پچھلے سال کسی دوسرے انسان کی زندگی آسان بنائی ہو۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، اور یہ تختیاں خالی کیوں ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، کیونکہ ہم اکثر نیکی تو کرتے ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے۔ فہد نے سوچا کہ شاید اس شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ اس نے شہر واپس جا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ پچھلے سال کس کس نے کسی کی مدد کی تھی۔ کسی نے یتیم بچوں کے لیے کتابیں دی تھیں، کسی نے بیمار پڑوسی کی دیکھ بھال کی تھی، کسی نے مسافروں کے لیے پانی رکھا تھا۔ فہد نے سب کے نام لکھے۔ اگلے سال دروازہ کھلا تو میدان کی بیشتر تختیاں بھر چکی تھیں، لیکن ایک تختی اب بھی خالی تھی۔ بزرگ نے فہد سے کہا، اس پر تمہارا نام ہونا چاہیے۔ فہد نے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے تو صرف دوسروں کی نیکیاں یاد کی ہیں۔ بزرگ مسکرائے، کبھی کبھی کسی کی نیکی کو پہچاننا بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اس دن شہر میں ایک نئی روایت شروع ہوئی۔ لوگ ہر سال خاموشی سے دوسروں کی اچھی کوششوں کو یاد کرتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے۔ سبق: نیکی صرف کرنا ہی نہیں، دوسروں کی نیکی کو پہچاننا اور سراہنا بھی انسانوں کے درمیان محبت بڑھاتا ہے۔ وہ دروازہ جو ہر سال ایک بار کھلتا تھا۔ ایک قدیم شہر میں ایک پتھر کا دروازہ تھا جو پورے سال بند رہتا مگر ہر سال صرف ایک دن کے لیے کھلتا تھا۔ 14 سالہ فہد ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک سال اس نے دروازہ کھلنے کے دن صبح سویرے وہاں پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، فہد اندر داخل ہوا۔ وہاں نہ خزانہ تھا نہ محل۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں سینکڑوں خالی تختیاں رکھی تھیں۔ ایک بزرگ نے اسے بتایا، ہر تختی پر ایک ایسے شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس نے پچھلے سال کسی دوسرے انسان کی زندگی آسان بنائی ہو۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، اور یہ تختیاں خالی کیوں ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، کیونکہ ہم اکثر نیکی تو کرتے ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے۔ فہد نے سوچا کہ شاید اس شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ اس نے شہر واپس جا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ پچھلے سال کس کس نے کسی کی مدد کی تھی۔ کسی نے یتیم بچوں کے لیے کتابیں دی تھیں، کسی نے بیمار پڑوسی کی دیکھ بھال کی تھی، کسی نے مسافروں کے لیے پانی رکھا تھا۔ فہد نے سب کے نام لکھے۔ اگلے سال دروازہ کھلا تو میدان کی بیشتر تختیاں بھر چکی تھیں، لیکن ایک تختی اب بھی خالی تھی۔ بزرگ نے فہد سے کہا، اس پر تمہارا نام ہونا چاہیے۔ فہد نے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے تو صرف دوسروں کی نیکیاں یاد کی ہیں۔ بزرگ مسکرائے، کبھی کبھی کسی کی نیکی کو پہچاننا بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اس دن شہر میں ایک نئی روایت شروع ہوئی۔ لوگ ہر سال خاموشی سے دوسروں کی اچھی کوششوں کو یاد کرتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے۔ سبق: نیکی صرف کرنا ہی نہیں، دوسروں کی نیکی کو پہچاننا اور سراہنا بھی انسانوں کے درمیان محبت بڑھاتا ہے۔ وہ دروازہ جو ہر سال ایک بار کھلتا تھا۔
एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए,
कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक: नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक: नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक: नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी।
किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले साल दरवाज़ा खिला तो मैदान की बेशतर तख्तियाँ भर चुकी थीं, लेकिन एक तख्ती अब भी खाली थी। बुजुर्ग ने फहद से कहा, इस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। फहद ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ दूसरों की नेकियां याद की हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कभी कभी किसी की नेकी को पहचानना भी एक नेकी होती है। फहद खामोश हो गया। इस दिन शहर में एक नई रिवायत शुरू हुई। लोग हर साल खामोशी से दूसरों की अच्छी कोशिशों को याद करते और उनका शुक्रिया अदा करते। सबक, नेकी सिर्फ करना ही नहीं, दूसरों की नेकी को पहचानना और सराहना भी इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है। वो दरवाज़ा जो हर साल एक बार खुलता था। एक कदीम शहर में एक पत्थर का दरवाज़ा था जो पूरे साल बंद रहता, मगर हर साल सिर्फ एक दिन के लिए खुलता था। 14 साला फहद हमेशा सोचता था कि इसके पीछे क्या है। एक साल उसने दरवाज़ा खुलने के दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खिला, फहद अंदर दाखिल हुआ। वहाँ ना खजाना था, ना महल। एक वसी मैदान था जिसमें सैकड़ों खाली तख्तियाँ रखी थीं। एक बुजुर्ग ने इसे बताया, हर तख्ती पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा जाता है जिसने पिछले साल किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाई हो। फहद ने हैरत से पूछा, और ये तख्तियाँ खाली क्यों हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हम अक्सर नेकी तो करते हैं मगर उसे याद नहीं रखते। फहद ने सोचा कि शायद इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नेकी कभी किसी ने देखी ही नहीं। इसने शहर वापस जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि पिछले साल किसने किसी की मदद की थी। किसी ने यतीम बच्चों के लिए किताबें दी थीं, किसी ने बीमार पड़ोसी की देखभाल की थी, किसी ने मुसाफिरों के लिए पानी रखा था। फहद ने सबके नाम लिखे। अगले